Jai Hind student, welcome to English class. Students, in this lecture we'll be discussing about the preposition of place. Last lectures में we have discussed about the preposition of time and we have seen the usage of different preposition and we have also discussed them with the help of few examples. Now let's discuss about the prepositions which can be used, which denotes या which indicate place. नाउ बेसिक मेनली थ्री prepositions की अगर हम बात करें, तीन prepositions हैं बेटा जो कि यूज़ होते हैं जस्ट टू डिनोट द प्लेस. दैट इज़ योर एट, ऑन, इन. लास्ट लेक्चर्स में व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द preposition ऑफ टाइम, तब मैंने बताया था कि दीज थ्री prepositions एट, ऑन एंड इन, इट इज़ यूज्ड as a preposition of time also and as a preposition of place also. Okay, apart from these three there are other prepositions also that can be used as place. That is your behind, above, by, near, from, under, within, below, into, besides. So these are also few prepositions that can be used as a preposition of place. Okay, now let's start with the discussion and first let's see about at. At की अगर हम बात करें तो at is used to show specific place. स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तभी हम एट वर्ड यूज़ करते हैं प्लेस के रिस्पेक्ट में. जैसे कि हमने टाइम में देखा था, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे थे तो हमने एट यूज़ किया था. इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन देन वी यूज़ एट. सो एट इज़ यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट. एग्जाम्पल, हाउस, स्टेशन, स्मॉल विलेजेस एंड टाउन. Let's see few examples. For example, I live at Balda Colony, Nishadganj, suppose. So here this at is denoting the specific, a specific place बता रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ. Okay, someone is at the doorstep. Okay, that is again specific place show कर रहा है. They lived at Gohana in a small town in Haryana. I was born at a village Shilmar. So exact position या exact place बताई जा रही है कि कहाँ ये सब हुआ था. The Prime Minister live at 10 Downing Street. She works at the Town Hill. The plane landed at London Airport. The train stopped at New Delhi railway station. So here in all the example you can see it is highlighting the specific place where these action occur. Now next move करते हैं in. Now in जो है it is used to show the enclosed place, चारों तरफ से बंद है कोई जगह, या also to show the position within the land areas. ठीक है, कोई एक बड़ा सा लैंड एरिया है उसके अंदर की पोजीशन अगर हम बात करें. ठीक है, जैसे इंडिया जो है बहुत बड़ी सी कंट्री है, इंडिया में आई लिव इन लखनऊ. ठीक है, तो इन यूज़ हो गया क्योंकि हमने पोजीशन की बात की है विद इन लैंड एरियाज. मीन्स बहुत बड़े एरिया में कोई एक उसके अंदर जो प्लेस है जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ. ओके, अगर इनक्लोज्ड स्पेस की बात करें जो चारों तरफ से बंद है, फॉर एग्जाम्पल द कबर्ड इज़ इन माई रूम. अब रूम क्या है? रूम इज़ अ इनक्लोज्ड स्पेस. ये एक इनक्लोज्ड स्पेस है. ठीक है, जो कि चार दीवारों से घिरी हुई है. ओके, उसी के अंदर जो क्या है, मेरी कबर्ड है. सो दैट इज़ हाउ दिस इन इज़ यूज्ड. So in is generally used when the reference is not to any specific place or to the names of large cities, countries और continent. जब हम large city, country या continent की बात करते हैं, ओके, कोई बड़े एरिया की बात करते हैं तब हम इन यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द स्पेसिफिक प्लेस. स्पेसिफिक प्लेस ये डिनोट इन वर्ड जो है वो नहीं करता है. ठीक है, बस एक एरिया के बारे में बताता है, बड़े से एरिया. फॉर एग्जाम्पल, many people in India live in villages. Okay, so that village is a broad term. They used to live in Bengaluru. The Indians live in India. They lived in Europe for 10 years. Okay, so this is how in is used. Now next बात करते हैं on पे आते हैं. Now on की अगर हम बात करें, on is used to show position on a horizontal or vertical surface. अगर हम बात करें कि
कोई हमें पोजीशन बतानी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल, मैंने बैग के ऊपर अपना मैंने टेबल के ऊपर अपना बैग रख दिया, तो हम एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात कर रहे हैं। ओके, जो कि टेबल थी, ओके, और उस पर हमने अपना बैग रख दिया। सो टेबल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल। नाउ, और ऑन इज यूज टू इंडिकेट पर्टिकुलर एरिया और लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज। ओके, सो ऑन इसके लिए भी यूज़ होता है कि पर्टिकुलर एरिया of land or place where something is. For example, he spent a few days on an island. He worked on a farm for some time. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया या लैंड या प्लेस डिनोट हो रहा है कि उस जगह मैंने काम किया कुछ देर के लिए। दे बिल्ड देयर हाउस ऑन अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ लैंड। देयर इज़ अ स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। द होटल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। सो ऑन जो है दोनों ही तरीके से यूज़ हो सकता है। पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, ओके, पर्टिकुलर एरिया या लैंड या प्लेस, या फिर हम पोजीशन की बात करें, ओके, पोजीशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस किस तरह रखा गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ ऑन इज़ यूज्ड। नाउ ये था जो है मेन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि मैंने बताया था एट, ऑन, इन। इसके अलावा भी मैंने कुछ प्रपोजिशंस बताए थे, लाइक बिहाइंड, ही स्टूड बिहाइंड द डोर, वी कैन राइट अबव द शेल्फ। ओके, द बैग इज केप्ट अबव द शेल्फ। प्लीज स्टैंड बाय माई साइड, बाय यूज हो गया। शी द हॉस्पिटल लाइज नियर द पोर्ट, नियर यूज हो गया। ही केम फ्रॉम न्यूयॉर्क, फ्रॉम यूज हो गया, दैट इज ऑल्सो डिनोटिंग अ प्लेस। दे ले हम ये कह सकते हैं द कैट्स ले अंडर द, या कैट्स ले अंडर द टेबल। ओके, तो अंडर यूज हो गया। विद इन द क्लासरूम, या तो हम विद इन द क्लासरूम जो है विद इन वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड या फिर कबर्ड इज़ विद इन द क्लासरूम। ओके, उसी क्लासरूम के अंदर। शी और बिलो वी कैन बी यूज लाइज बिलो द सर्फेस। ओके, द पेन स्टैंड लाइज बिलो द सर्फेस और समथिंग लाइक दैट वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस। फेल इनटू अ लार्ज क्रेटर, इनटू हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूड बिसाइड मी, ओके, शी स्टूड बिसाइड मी, मेरे बगल में। सो दिस फॉर दिस ऑल्सो वी कैन यूज़। सो हेयर ऑल दीज प्रपोजिशंस कैन बी यूज्ड डिनोटिंग द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट के बारे में। थैंक यू एवरीबडी।